حتیم کا اس کو ہجر بھی کہتے ہیں حتیم کے حصے کو. تو یہ خانہ کعبہ کے حکم میں بعض اعتبار سے خانہ کعبہ کے حکم. جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری آج جو ہے خانہ کعبہ کے اندر فجر کے 2 رکعتیں پڑھو. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فتح مکہ آپ کو نصیب کر لے تو میں خانہ کعبہ کے اندر جو ہے 2 رکعتیں پڑھوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کے لے گیا, کہا تم یہاں پڑھو. حتیم کے حصے میں لکھا ہے بھائی آپ پڑھو. یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. اور ولیکن قومک کی, لیکن تیری قوم نے, یہ بس ایک بات ہے, ورنہ تو جو ان کی قوم تھی تو وہ حضور کی بھی قوم تھی. یہ نہیں فرمایا قومنا, بس ان کو یہ بے تکلفی میں اس قسم کی بات. تیری قوم جو ہے استقصرو, اس کو جو ہے گھٹایا, استقصرو اس کعبے کو گھٹایا. ہینا بنا الکعبہ فاخرجوہ من البیت, اس کو نکالا ہے بیت اللہ. تو اس کا حکم اس اعتبار سے اگر کوئی اعتکاف کر لے, نظر کر لے, مان لے تو وہ یہاں بھی کر لے گا, تو اس اعتبار سے یہ کھانے. لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے صرف حتیم کی طرف خانہ کعبہ کی طرف میں پڑھی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی, بالخصوص مکہ کے اندر. مکہ کے اندر اس وجہ سے کیونکہ وہاں قبلہ جو ہے عین کعبہ ہے. یہ پہلے یہ مسئلہ آ چکا, سمجھا چکا. وہاں جہتی کعبہ جو ہے وہ ہمارے لیے, اہل مکہ کے لیے عین کعبہ. لیکن وہاں حتیمی کی طرف اگر کوئی پڑھ لے گا, کیونکہ حتیم کے اندر اختلاف ہے کہ آیا کہ سارا حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ یا کچھ ہاتھ اس سے باہر کے بھی اس میں جوڑ دیے گئے صاف. اس میں اشتباہ ہے. اس وجہ سے حتیم کے بارے میں یقین ہی نہیں ہے کہ کتنا حصہ جو ہے اس کا خانہ کعبہ کا حصہ, کتنا حصہ جو ہے خارج ہے اس سے, یعنی اصل تعمیر ابراہیمی. اس وجہ سے وہاں جو ہے حکم یہ ہے کہ نہیں, وہاں تو کعبہ جو ہے نا, موجودہ کعبہ, تعمیر شدہ کعبہ, اسی کی طرف جو ہے اس کو نماز پڑھنی ضروری ہے, تب نماز صحیح ہوگی. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی افراد میں سے ہے. یہ 2 حدیثیں امام ترمذی کی افراد میں سے ہے. سمجھ آیا؟ کچھ نہیں آیا ہے, یعنی صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ان کی روایت کی ہے, اور صحابہ ستہ کے میں سے کسی نے بھی اس کی روایت نہیں کی ہے. البتہ باقی میں ہے, یہ ابن خزیمہ کے اندر ہے, اس سے ایک شاہد ملتا ہے ان کا. اس روایت کے اندر فضیلت حجر اسود ہے اور رکن المقام کے. ان کو یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ یاقوت عالم الجنہ, جنت کی یاقوت ہے. دنیا کے اندر بھی جیسے یاقوت پتھر قیمتی سمجھا جاتا ہے, وہ بڑا شفاف پتھر ہوتا ہے. بیچتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے نگ, یمنی لوگ جو ہے, یمن کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے, اس لیے نگ بیچتے ہیں. 100 200 روپے کا وہ اتنا ملتا ہے, وہ پھر اس میں نگی نگ لگاتے ہیں. وہ بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے موٹا, لیکن آر پار بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس قسم کا پتھر ہی ہوتا ہے وہ یاقوت کا پتھر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ایسے اس وقت چمکیلے تھے دونوں, یعنی مقامی ابراہیم کا پتھر, یہ بھی جنت سے ہی آیا تھا. تو یہ اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر جو ہے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. تو خانہ کعبہ کی تعمیر جو دیواریں اونچی ہوتی تھی, تو یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا. بعد میں پھر اصل حالت پر آ گئے, اور اسی وجہ سے اس پر جو ہے وہ پیروں کے نشانات پڑ کے جو اب تک موجود ہیں, جس میں قرآن میں تذکرہ ہے اور اب تک موجود بھی ہے. پہلے تو یہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑا تھا, بعد میں اس کو جو ہے سیلاب نے اس کو کہیں دور سے لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو آج جہاں جس مقام پر ہے وہی نصب کر لیا تھا. وہی شیشے کے فریم میں وہی نصب شدہ ہے. یہ مقامی ابراہیم, یہ بھی پتھر ہے. اور حجر اسود یہ بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید چمکیلے تھے. تو بعد میں جو خطائے ابن آدم, لوگوں کی گناہوں نے میلا کر دیا, اس کو کالا کر دیا. یعنی لوگوں کے ہاتھ لگتے گئے اور اس کو چھوتے گئے, تو آہستہ آہستہ ہزاروں سال سے جب ایسا سلسلہ چلتا آ رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مسلم نورہما, اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی آہستہ آہستہ چھین لی ہے. اب یہ وہ نہیں رہے.
इंसान का अमल दखल जिसके साथ इंसान का हाथ लग जाए अक्सर वो अपनी हालत पर नहीं रहता है। ये तजुर्बा का फूल बाग के अंदर खुद खिलता है तो उसको रोजाना जो है थोड़ा सा उसको छुआ करो, 2-3 दिन के अंदर उसको सूख जाता होगा। ये इंसान का हाथ भी जहर भी है। और यहाँ भी जो है हजर असवद गुनाहगार हाथ जो है लग चुके हैं कि गुनाहगार मुंह भी लग चुके हैं, तो इस वजह से ये भी जो है अपनी असल हालत पर नहीं रहे। लेकिन इनके बारे में ये साबित है कि ये जो है ये जन्नत से ये पत्थर आए हैं। कब आए हैं, कैसे आए हैं, इस सिलसिले में ये कहा जाता है, ये रिवायत से साबित नहीं। ये तो है रिवायत से सब जन्नत के पत्थर, ये नहीं है आमतौर पर कहा जाता है हज़रत इब्राहीम आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो उनके साथ ये 2 पत्थर आ गए हैं, लेकिन वो किसी रिवायत से साबित नहीं है। अलबत्ता ये रिवायत से साबित, इनकी वो सारी तफसीर उसमें लिखी हुई है किताबों को तोहफतुल हरमैन के अंदर। ये खरूज इलल मिना, इसका मतलब ये है कि 8वीं तारीख को से एहराम बांधना होता है। 8वीं तारीख से असल हज शुरू होता है, तो एहराम तो वहीं से बांध ले, या अगर कोई उधर से आ रहा हो, हिल से आ रहा हो तो वो हरम हिली से एहराम बांध ले। अगर कोई बाहर से आ रहा हो इस 8 तारीख को भी तो वो वही मीकात से एहराम बांध ले। और अगर हरम के अंदर जो रह रहे हैं, हरम के रहने वाले, यहाँ जो मुतमत्या हैं, तो मुतमत्या तो क्योंकि वो तवाफ उम्र से फारिग हो चुके हैं, इस वजह से वो भी जो है मक्की के हुक्म में उस वक्त हो जाते हैं, तो वो भी एहराम बांधे कहाँ, मक्का में। तो फिर ये 8 तारीख को निकल जाएंगे मिना की तरफ। ये निकलना बस सुन्नत है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई यहाँ से जो है सुबह सवेरे सीधे कोई चला जाए, मुतमत्या के लिए तो नहीं है क्योंकि उसको तो पहले उम्रा करना है। तो कारिन के लिए भी जो है तवाफ़ कुदूम भी सुन्नत है, वाजिब है, लेकिन वो उसके लिए है कि जो मक्का में आ जाए उसके लिए तो वाजिब है। लेकिन फ़र्ज़ करो मक्का में कोई आया नहीं, उधर से कोई आया, अरफात की ही साइड से कोई आया, तो सीधा वो अरफात ही पहुंच जाए, तो मिना न गया तो उस पर कोई दम वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ये बस सहूलत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि ये मिना यहाँ से जो है 10-15 किलोमीटर 5-8 मील जो है ये पड़ता है मक्का से, इस वजह से सहूलत, क्योंकि वहाँ से फिर अरफात जो है 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ से सहूलत हो जाती है फिर अरफात जाने के लिए, अभी तो पहुँच जाएगा। इस वजह से मिना जाना जो है ये बस सुन्नत है, मुस्तहब है। तो अरकानी हज में से नहीं है मिना में जाना। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज को गए तो वो मिना में गए, और मिना के अंदर उन्होंने क़याम किया, 5 नमाजें उन्होंने वहाँ पढ़ी, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें उन्होंने वहीं पढ़ी। फजर पढ़ने के बाद वो तशरीफ़ ले गए वहाँ से अरफात के बाद। और अरफात में तो फिर ज़वाल से पहले कोई अमल नहीं है, ज़वाल के बाद तो फ़ौरन जो है वहाँ नमाज होती है, चाहे वो जमा बैन सलातन हो, चाहे इनफरादी कोई हो, तो दोनों अलग अलग पढ़ रहे हो। उसके बाद जो है अमल शुरू हो जाता है, वहाँ दुआ अज़कार में मशगूल रहना है, जब रहमत के पास वगैरह वगैरह जिसको वक़ूफ़ अरफात कहते हैं। फिर मगरिब के बाद जो है गुरूब शम्स के बाद वहाँ वापस होना होता है। ये तो बहरहाल मिना, यह मिना की बात है कि मिना में जाना कोई ज़रूरी नहीं है, वो सीधा अरफात से जाए तो असल हज जो है अगर शुरू होता है वक़ूफ़ अरफा से, वो लाजिम। मनाक कहते हैं ठहरने की जगह, मनाक असल कहते हैं ऊँट को बैठाने की जगह, जहाँ ऊँट को बैठाया जाए, जहाँ आदमी क़याम करे, गाड़ी खड़ी करते, तो वहाँ उस ज़माने में सवारी ऊँट थी, तो
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिना गए तो उसके लिए दरियाफ्त भी किया गया है कि आपके लिए कोई यहाँ मतलब बना लेंगे, कोई खीमा वीमा लगा लेंगे वगैरह, यहाँ कोई जगह बना लेंगे, कोई छप्पर वपर। हुजूर साहब ने मना फरमाया। उन्होंने फरमाया कि मिना में मनाख जो है ठहरने की जगह उसकी वही है, मनसबत अलमनाख है। जो जहाँ पहले पहुंचा है, जिसने जिस जगह को डेरा डाला, बस उसकी जगह मिना उसकी जगह है, कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया। आजकल तो मिना के अंदर भी मुस्तकिल तामीर नहीं करते हैं, वो टेंट लगाते हैं। अब तो जो है तारीख का ज़माना आ गया है, तो अब तो एयर कंडीशन टेंट और अजीब गरीब किस्म तामीर से ज़्यादा उस पर खर्चा आता है। और फिर जो है उसमें तो टेंटों के अंदर 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 आदमी भी उन टेंटों के अंदर रहते हैं। ऐसे अपना अपना जो है कोई चादर वादर साथ होती है, तो वहीं टेंटों के अंदर रात गुजारते हैं। सुबह सवेरे से वहाँ अरफात की तरफ चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर 3 दिन इन्हीं टेंटों के अंदर क़याम करके उसके बाकी टेंटे उखाड़ लिए जाते हैं, उठाए लिए जाते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपने लिए यहाँ उम्मत को ये नहीं बताया था कि हाँ जो है यहाँ कुछ मतलब सब जो है अपना अपना इंतज़ाम उसको खुद कर लेते, तो बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला कि इससे इजाज़त नहीं। उन्होंने जब कहा अला नबनी लका बिना बिज़िल्लो का, या हम आपके लिए कोई ऐसा छप्पर वपर बना लेंगे, बिना से यहाँ मुराद नहीं है तामीर करेंगे, वाइट हाउस बनाएंगे, ये जिल्लो का जो आपके लिए साया बन जाए मिना के अंदर। तो हुजूर ने फरमाया ना ला मिना मुना को मनसबत है, मिना उसकी जगह है, मना मैंने ठहरने की जगह, मनसबत जो पहले पहुंचा जिसने जहाँ, लिहाजा मेरे लिए कोई मुतय्यन जगह नहीं की जाए। ये आम तो पूछा भी जाता है, कराया भी जाता है, पेश भी आता है। अब तो तुम्हें उम्मीद ही नहीं है मसला ये है कि नमाज वुज़ू का क्या मसला है दौरान हज। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का इस सिलसिले में मसलक ये है कि वो ये फरमाते हैं कि जहाँ जो है कसर है, यह अहकाम नुस्ख में से एक सहूलत के लिए की, यहाँ कसरी होगा हर जगह, मक्का के अंदर रहे कितने दिन रहे, जब तक वो हज में इसमें रहे कसरी होगा। और जो है जब मिना जाए वहाँ भी कसर होगा, अरफा जाए, जब तक वो हज के अंदर रहे तब तक वो कसर ही करता है। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मसला। बाकी तीनों इमाम मालिक के अलावा वो ये कहते हैं कि नहीं, कसर का नमाजों के कसर का मसला सफ़र के साथ जैसे आम हालात के अंदर जुड़ा हुआ, वैसे ही यहाँ भी कसर सफ़र के अंदर है। अब सफ़र की मिकदार में तो थोड़ा इख्तिलाफ है, वो अब बाबू सफ़र के अंदर तुम्हें पड़ेगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कितनी मिकदार को वो मुसाफिर कहते हैं, अहनाफ के नज़दीक क्या है और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क्या है वो देखना चाहिए। लेकिन मजमूई तौर वो ये कहते हैं कि सफ़र के अहकाम उस वक्त लागू होंगे कि जब सफ़र का इतलाक़ उस पर होगा हाजी पर। अगर सफ़र का इतलाक़ नहीं हुआ है तो मुकीम के नमाज हो पड़ते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब कोई शख्स इधर से जाता है तो वो ये देखकर जाए कि मुझे कितने दिन वहाँ ठहरना है मक्का के अंदर। मक्का से मदीना तक तो लंबा सफ़र है, इस वजह से वहाँ जो है अगर बीच में कहीं उन्होंने लिया है कि इसको ले जाएंगे हम मदीना ठहर कर लाएंगे। कभी ऐसा होता है यहाँ उम्रा कराते हैं, क्योंकि मुतमत्ता अक्सर हाजी होते हैं, तमत्तु कर लेते हैं, तो उनको पहले वहाँ क्या कराते हैं तवाफ, क्योंकि उस
उससे तो फारिग उनको करना है उम्र से, उसके बाद उनको फौरन लिया जाता है मदीना। तो यहाँ का क़याम 2 दिन 4 दिन 5 दिन होगा 10 दिन होगा, तो अहनाफ के नज़दीक 5 दिन 10 दिन, बल्कि सभी के नज़दीक तो ये जो है ये इकामत मुझे शुमार नहीं होगा, क्योंकि मुकीम बनने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम नीयत उसको हो 15 दिन के ठहरने। तो यहाँ तो जो उनका इरादा है जिनके हाथों में हमारी लगाम है, तो वो जब ये कह रहे हैं कि नहीं जी यहाँ तुम्हें 10 दिन ठहरना है, 10 दिन के बाद तो तुम्हें मदीना जाना है, तो इसका मतलब ये हम मुसाफिर हैं। मदीना भी जाएंगे तो वहाँ भी मुसाफिर रहेंगे, तो वहाँ तो 7-8 दिन रहते हैं। 8 दिन रहने के बाद अरे कितना लाभ हो गई। अब ये तो होगा उसका मसला, लेकिन अगर फर्ज करो वो मदीना से कभी ऐसे करते पहले से मदीने घुमा कर लाते हैं, वहाँ से फारिग कर लाते हैं, फिर मक्का आ जाता है। अब अगर कोई शख्स मक्के के अंदर उसको ये पता है कि मुझे यहाँ 15 दिन या 15 दिन से ज़ायद यहाँ क़याम करना है, फिर उसके दौरान उसको हज के अयाम आ जाते हैं। हज के अयाम के अंदर वो मक्का से निकलता है मिना की तरफ, मिना से निकलता है अरफात की तरफ, अरफात से आता है फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ, फिर आता है मक्का की तरफ। तो क्या इस पर जो है सफ़र का इतलाक़ होगा? सफ़र का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि मिना हो मुज़दलिफ़ा हो या अरफात हो, इस पर सफ़र का इतलाक़ नहीं होता। ये इतनी मसाफत नहीं है कि जिस पर सफ़र, क्योंकि इकामत वतन इकामत को तोड़ देता है, वतन असली यहाँ तोड़ देता है उसको को सफ़र के हुकूक। ऐसे जैसे कुछ हवाई भी नहीं लगी, किताबों में पढ़ चुके हो। यहाँ तो वतन इकामत पहुँच जाए तो वतन असली पहुँच जाए, वतन असली पहुँच गया तो वतन इकामत अब खत्म। यहाँ इसको वतन इकामत को सफ़र तोड़ता है, यानी वतन इकामत कर लिया फिर बाद में उसको सफ़र लायक हुआ है, तो अब वो वतन इकामत नहीं रहा, वो टूट गया। फिर जब आ जाएगा वापस वहाँ, जब इकामत की नियत कर लेगा तब जो है फिर वतन इकामत करेगा। वो नहीं आ रहा है समझ में, सफर भी नहीं, वतन असली की तो बात ही नहीं। वतन असली कहाँ चिराग में जो है घर आ जाएगा, यहाँ तो बात ही नहीं। वतन इकामत बना था उसका क्या मक्का, चाहे इधर से जाकर ही वो वहाँ 15 दिन या उससे जायद रहा, या चाहे मदीना से होकर यहाँ जो है उसको क़याम करना है 15 दिन या उससे जायद, तो क्या बन गया इसका ये वतन इकामत। अब वतन इकामत किससे टूट जाएगा? सफ़र से। ये सही, हाँ सफ़र से टूट जाएगा। सफ़र तो का इतलाक़ तो मिना में जाने से नहीं होता है और अरफात में जाने से भी नहीं होता है। ये 10, 15, 20 किलोमीटर इसमें सफ़र का इतलाक़ कहाँ होता है आना। इस वजह से उसको ये देखना होगा कि मैं अगर मुसाफिर हूँ कहाँ मक्के के अंदर, तो मुझे तो सफर ही की नमाज इन मकामात पर भी पढ़नी है, और अगर मैं मुकीम हूँ मक्के के अंदर तो मुझे जो है वहाँ भी जो है पूरी नमाज पढ़नी है। क्योंकि वहाँ एक गड़बड़ होता है, वहाँ गड़बड़ ये होता है कि वहाँ इमाम जो है 2 रकात ही पढ़ा, क्योंकि हम्बली मसलक में भी ये नहीं है, ये तो सिर्फ इमाम मालिक का इख्तिलाफ। उन्होंने कभी ये तय किया इमाम मालिक के मवालिक की रियायत में, जो मालिक के मसलक उनकी रियायत में ये उन्होंने किया है कि इमाम को वो मुसाफिर बनाते हैं। मुसाफिर कैसे बनाते हैं? उसको लेते हैं पहले कहीं से, फिर कहीं से दूर से उसको घुमा कर लाते हैं ताकि उस पर सफर का इतलाक हो जाए। तो अब वो मुसाफिर बन गया, ये तो है ही मसला। जहाँ से उसको ले गए कहीं किसी दूसरे शहर से सफर करके उसको पहुँचा दिया वहाँ कहाँ के अंदर, ताकि वो नमाज पढ़े। नमाज वो जो पढ़ाता है वहाँ तो 2 रकातें पढ़ा लेता है, क्योंकि वो है मुसाफिर। लेकिन बेवकूफ जो होते हैं इधर से गए हैं तो उनको अपनी नमाज को ख्याल नहीं होते कभी। इमाम साहब ने 2 रकातें पढ़े, हम भी 2 रकातें पढ़ेंगे, धर्म का इमाम है, ये गलत थोड़ी करेगा। उनको सूरज हाल का पता नहीं होता है, तो ये भी पागलों की तरह जो है। और बहरहाल जिस भी ये कहते हैं कि इमामी का इत्तिबा करना है तो वो भी ये जो है 2 ही रकातें पढ़ने को तरजीह देते हैं। हालांकि बाकी तीनों इमामों के नज़दीक उसको अपनी नमाजों के मतलब ये सोचना है कि मुझे जो है सफरी नमाज है या इकामती नमाज है।
अगर उसको ये पहले से तय करना, पूछना कि मुझे जो है अगर इकामती नमाज है तो वो तो ठीक है, 2 रकअत उसने जोहर की पढ़ाई, 2 रकअत असर की पढ़ाई, तो ये जो है खड़े होकर जो है अपनी नमाज पूरी करें। और जो मुसाफिर होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि जिनको जो है उसके बाद फौरन ही, मतलब हज के बाद फौरन ही उनको, वो उसी दिन आए थे 2-3 दिन पहले, ऐसा भी हो सकता है 2-3 दिन पहले, हज से पहले 2-3 दिन आए, पहुंचे कहाँ मक्का। अब इनको तो 5-8 दिन ज्यादा से ज्यादा लगेंगे कहाँ हज में, 5-8 दिन कुल लगेंगे, 2-3 दिन ये हो गए वहाँ उम्र के 1-2 दिन, और उसके बाद जो हज के 5 अयाम, तो ये 5-8 दिन हो गए उनके किसके हज में। हज के बाद उनको फौरन निकालेंगे किधर, मदीना। जब मदीना ले जाएंगे, इसका मतलब है कुल ज्यादा 10, 12, 13, 14 दिन इसमें हो जाएंगे, सार को तो मदीना ले जाएंगे। उनको पता ही है हमें 14 तारीख को, ये 15 दिन से पहले हमें पहुंचना है कहाँ, मदीना, तो वो तो मुसाफिर ही रहे, क्योंकि 15 दिन का वक्फा इसमें नहीं पाया गया, इस वजह से वो मुसाफिर, वो तो मुसाफिर होते ही इसमें, इस किस्म के लोग भी होते हैं, लिहाजा वो 2 रकअत इमाम के पीछे पढ़ेंगे, तो वो 2 रकअत ही पढ़ेंगे। लेकिन जिनको कयाम है मदीने से होकर आए, या इनको पता है कि अभी तो हम मक्का ही में है, अभी तो मदीना गए नहीं, हम तो 15 दिन से पहले ये रह रहे हैं यहाँ मक्का के अंदर, अभी जब तक न हम सफर शुरू करेंगे तब तक तो हम मुकीम ही हैं, क्योंकि एक इकामत को कौन तोड़ता है, सफर कभी शुरू नहीं किया, मदीना कभी गए नहीं, इस वजह से अभी तो हम क्या है, मुकीम है, लिहाजा उनको तो पूरी पढ़नी पड़ेगी ना, इमाम की तरफ देखना नहीं पड़ेगी। ये है इसकी तफसील। अब ये है दलील का मतलब क्या है। दलील ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इमाम मालिक रहमतुल्लाह की दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 2 रकअतें पढ़ाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी तो देखो क़याम कितना हुआ, वो 5 तारीख को निकले थे मक्का के अंदर और पहुंच गए 2 ज़िलहिज्जा को, 5-8 दिन वो हो गए, 2-3 दिन मदीना तो जाना नहीं था, मदीना जाना था वापस, हमारी तरह मदीना थोड़ी तो वतन असली था वो। अच्छा, तो उसका मसला ये है कि वो 5-8 दिन तो गुजर गए किसके साथ, हज के साथ, 2-3 दिन उन्होंने उसके बाद क़याम किया था, ये 12, 13, 14 दिन हो गए, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ही के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस चले गए मदीना, तो वतन इकामत का तो इकामत पाई नहीं है, तो लिहाजा अगर उन्होंने पढ़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का भी ऐसा मामला था, हजरत उमर रज़ी, अलबत्ता हजरत उस्मान गनी पूरी नमाज पढ़ाते थे, उनसे पूछा गया कि ये एतराज हुआ उन पर कि आपने पूरी नमाज कैसे पढ़ाई, तो उन्होंने कहा मैं इस वजह से पूरी नमाज पढ़ाता हूँ कि पहले आखिरी 2-4 सालों के अंदर उन्होंने जो है पूरी नमाज पढ़ाना शुरू। जब उन पर एतराज हुआ तो उन्होंने कहा कि असल ऐसा है कि मैं चंद सालों से मैंने एक निकाह किया है मक्के के अंदर, और मैं जब आता हूँ वहाँ तो पहले वहाँ क़याम कर लेता हूँ, वहाँ ठहरता हूँ, और वो भी समझो मेरा घर है, वहाँ मेरा घर भी एक बना हुआ है, तो वो मेरा घर है, तो गोया कि मैं, मेरे लिए अब मक्का रह गया है, बन गया है वतन असली, तो यहाँ लिहाजा मैं यहाँ का मुकीम हूँ, तो मैं तो 4 ही नमाजें पढ़ाऊँगा, मैं तो पूरी नमाज ही पढ़ाऊँगा, इस वजह से वो पूरी पढ़ाते थे। और जब इमाम पूरी पढ़ाएगा तो मुक्तदी सबको भी क्या है, पूरी पढ़नी पड़ेगी, नहीं कसर करेंगे नहीं। अच्छा, तो ये है सूरत हाल। और हदीसों के अंदर चूंकि इसमें इख्तिलाफ है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, और उनकी दलील भी है, इनकी दलील भी है, जमहूर की दलील भी है, इस वजह से ये दोनों मसले जो है ज़रा उलझे हुए हैं, तो ये इस बाब के अंदर इसको तफसील से उसकी दलील, इनकी दलील, इमाम मालिक की दलील और जमहूर की दलील बयान की गई है, जिसके तुम्हें हवा भी नहीं लगी है, क्योंकि